Okay. So good afternoon, everyone. Myself, Dr. Purvin Shah, Assistant Professor at Silver Oak College of Physiotherapy, Silver Oak University, Ahmedabad, and a member of PhysioZine. I welcome you all for the webinar today, which is titled From Bleed to Strength, the Rehab Roadmap in Hemophilia by Dr. Sandeep Kumar Sir. I would like to introduce Dr. Sandeep Sir. It is my honor to introduce Dr. Sandeep Kumar Sir, an accomplished associate professor in musculoskeletal physiotherapy at College of Physiotherapy, Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot, Punjab, with over 17 years of academic, clinical, and research expertise. He is an internationally recognized speaker, author, and researcher in areas including musculoskeletal disorders, hemophilia, thalassemia, stroke recovery, and sports injuries. Dr. Sandeep has presented his work at prestigious global platforms such as the World Federation of Hemophilia Summit in Dubai, the Asian Confederation of Physiotherapy, and the World Confederation of Physiotherapy. He has authored more than 50 research papers and also a widely appreciated book for hemophilic patients called Hope. As a recipient of multiple national honors and active contributor to healthcare training, patient education, and policy initiatives, Dr. Sandeep continues to inspire through his leadership and dedication to advancing physiotherapy practice. It is my honor to welcome you, sir. Thank you for conducting this webinar. We welcome you all, sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Purveen. I am very thankful and I am basically not aware of these kind of things which you are mentioning over here. So for all the dear physios and my respected seniors and the other faculty members, I am thankful that you have joined this webinar. So we are starting with the hemophilia. Even in a word of physiotherapy, hemophilia is a less known disorder, but still we are working on a hemophilia from the last 8 to 10 years. I started my journey in 2007 with this hemophilia. So I have a lot of experience in treating these kind of patients, and at present we are giving a seminars and other things to the physios working in a civil hospital and some of the government hospitals also. So today I'm going to start with my topic from bleed to strength, the rehab roadmap in hemophilia. So I just want to share that some of my patients also joined this webinar. So this webinar is in a Hindi or English, both language. So if you're talking about hemophilia is a word, is a terminology which is not in my syllabus when I started my journey of physiotherapy in 2001. But still we are seeing that even but just saying a hemophilia word, we are stammering. Even the physios are not aware of the word hemophilia. वर्ड को बोलते हुए भी थोड़ा सा ऐसे डर लग रहा है कि यार हेमोफीलिया क्या है क्या नहीं है, बिकॉज जनरली वी आर लिसनिंग अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, some neurological disorders, stroke, rehabilitation, these kind of words. But what about a hemophilia? So we're starting with a webinar. So hemophilia is basically a Greek word that means a love of blood. It was first coined by the Conrad Otto in 1803. तो उस टाइम पे हम हेमोफीलिया वर्ड नहीं था. That there are some of the words that has been coined by Dr. Otto, and he usually calls this hemophilic patient as a bleeder. So why bleeder? I just introduce in a very basic language. For example, अगर bleed होता है, if there is a bleed, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो ब्लीड है वो क्लॉट बन जाता है, कोगुलेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद ब्लीड नहीं होता. बट इन द हेमोफिलिक केसेस bleed जो है वो नहीं रुकता. If the blood oozes out, if there is a cut, if there is an injury, if there is a skin bruises, the blood will not stop. It will not coagulate. So Dr. Otto has given a term that is a bleeder, and it is because of some factors. There are totally 12 factors over there, and just because of the deficiency of one or two factors, the coagulation is not possible. So before the World War II, the doctors learned that the hemophilia was caused by a problem with a protein in a blood that is a factor 8. And after that, the word was coined. So hemophilia is also called as Royal's disease. So why Royal? Because it has been seen that it was
Queen Victoria, who became the Queen of England in 1837, and he was diagnosed with the hemophilia B carrier. And after that, हेमोफीलिया आगे उनके बच्चों को, उनकी डॉटर्स को, उनको धीरे धीरे आगे ये पास ऑन होता गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रॉयल डिजीज. Now, it is very important to listen about Excuse me, this sir. type of a Excuse me, hemophilia. Sir. Sorry to interrupt, sir, but No issue. you are not visible, sir, actually, right now. Oh, Yes, now it is. Okay. now Thank I'm you so much, visible. sir. Yes, sir. So sorry to interrupt, sir. No. But what about the presentation? Now I'm visible. Yes, sir. Okay, fine. Yep. So there are three kinds of hemophilia. There are three types of hemophilia. The one is the hemophilia A, B, and C. Please, जितने भी listeners हैं सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने. हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी और हेमोफीलिया सी, तीन तरह के हेमोफीलिया होते हैं. एक और होता है जिसको एक्वायर्ड हेमोफीलिया बोला जाता है. इन हेमोफीलिया ए, आप ज्यादातर केसेस इन एन ओपीडी और इन ए मेडिकल कॉलेज आप हेमोफीलिया ए के देखोगे, जस्ट बिकॉज उसका इंसिडेंस जो है वो 5000 बर्थ में एक बंदे को होता है. तो हमारे पास भी इन आर कॉलेज, इन आर मेडिकल कॉलेज, इन आर यूनिवर्सिटी हम हेमोफीलिया ए के केसेस ज्यादा देखते हैं. हेमोफीलिया बी में क्या होता है? हेमोफीलिया बी एक क्रिसमस डिसऑर्डर है, बिकॉज ये टर्म कॉइन की गई थी. स्टीफन क्रिसमस एक बंदे का नाम था जिसमें हेमोफीलिया बी पाया गया था, उसके बाद इस टर्म को निकाला गया. हेमोफीलिया सी बहुत रेयर देखा जाता है, आप बहुत रेयर सुनोगे कि हेमोफीलिया सी का भी केसेस है. सो व्हाट अबाउट द हेमोफीलिया ए एंड बी? ब्लड क्या क्लॉट बनाने में कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर फैक्टर 8 कम है या नहीं है तो दैट इज अ टाइप ए, हेमोफीलिया ए का केसेस, विच इज फाउंड इन अ लॉट ऑफ केसेस. अगर हेमोफीलिया बी है, इट मींस उसमें फैक्टर 9 अवेलेबल नहीं है या कम है. सो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझें. फैक्टर 8 अगर कम है, रिड्यूस लेवल में है, दैट इज हेमोफीलिया ए. अगर फैक्टर 9 कम है, डिक्रीज ऑर्डर में है, सो दैट इज हेमोफीलिया बी. सो इट्स अ वेरी सिंपल पैथोलॉजी. मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा. सम ऑफ द पेशेंट्स आर आल्सो देयर. तो सिंपल सी बात है, इफ द इंजरी अकर्स, द इंजरी टू द ब्लड वेसल रिजल्ट इन ब्लीडिंग. जब ब्लीड हो रहा है तो वहां पे जितने भी नॉर्मल प्रोसेस होता है हीलिंग का वो होना शुरू हो जाता है. और जिसमें फैक्टर 8 रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड का क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, मतलब प्लेटलेट प्लग बनने शुरू हो जाते हैं. बट अगर फैक्टर 8 वहां पे कम है या नहीं है तो ब्लड विल कम आउट. तो वहां पे वो क्लॉट या फिब्रिन का जो क्लॉट है वो नहीं बनेगा. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्यूरिटी लेवल. तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उससे प्लीज आप लोग भी ये चीज जरूर पूछें कि आपका फैक्टर ऐसे लेवल क्या है. सो फैक्टर ऐसे लेवल आपके सामने तीन चीजें आ रही हैं. द वन इज अ स्वीयर, अनदर वन इज अ मॉडरेट, अनदर वन इज अ माइल्ड. सो स्टार्टिंग विद अ माइल्ड मतलब 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट, मतलब 5 to 40% उसमें क्लॉटिंग फैक्टर है, जो कि स्वीयर ब्लड और ट्रॉमा में बहुत कम देखा जाता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी उसको इंजरीज ऐसे नहीं होती हैं. इन अ मॉडरेट केसेस देयर आर 1 to 5% ऑफ द फैक्टर अवेलेबिलिटी, एंड इन अ स्वीयर केसेस देयर इज लेस देन 1%. अब प्लीज इस चीज को थोड़ा सा समझो. इन अ स्वीयर फैक्टर ऐसे लेवल, इट मींस पेशेंट अगर कुछ भी ना करे तो उसको ब्लीड हो जाता है. बट अगर वो माइल्ड केस है या मॉडरेट केस है तो जब तक उसको ट्रॉमा नहीं होता तब तक वो उसको ऐसे ब्लीड नहीं होता. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. There was one case coming to me from the area nearby me, 40 kilometer away from me. So he's coming here with a flexion of a elbow and a swelling at the elbow joint. तो हुआ क्या, उसको वो सारा दिन सुबह से बैठा हुआ टाइप राइटिंग कर रहा था. टाइप राइटिंग करने के बाद जब वो उठा, उसके एल्बो में ब्लीड हो गया. जब हमने उसका फैक्टर ऐसे लेवल चेक किया तो फैक्टर ऐसे लेवल उसका स्वेरिटी पे था, लेस देन 1% था. इट मींस जब भी आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हो या आपके पास फिजिशियन ऐसे केसेस भेजता है तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि उसका स्वेरिटी लेवल क्या है. इफ इट्स माइल्ड और मॉडरेट देन यू कैन गो फॉर अ एक्सरसाइज, बट इफ इट्स अ सीवियर काइंड ऑफ अ केसेस, प्लीज आप इंश्योर करें, हम आगे आगे टर्म्स पढ़ेंगे, कि फैक्टर का लेवल जो है वो सीवियर है या मॉडरेट है, और उसको फैक्टर दे दिया गया है या नहीं दिया गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अब इस चीज को थोड़ा सा, चलो आगे हम ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ, ये एक स्पाइडरमैन का सीन है. ट्रेन इज जस्ट लाइक ए ब्लड कमिंग आउट, एंड इफ देयर इज अ फैक्टर 8 और द फैक्टर 9 का लैक है, तो अगर वो कम है तो उनका बहुत जोर लगता है ट्रेन को स्टॉप करने में, ब्लड को रोकने में. ठीक है.
Now, hemophilia is a X-linked recessive disorder because the genes for the blood clotting factor 8 and factor 9 are on the X chromosome. आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें ये देखा गया है कि जनरली मेल जो है हेमोफीलिया के वो अफेक्टेड होते हैं, फीमेल जो है वो कैरियर होती है। तो मैंने बहुत कम केसेस, 1 or 2 केसेस आर देयर जिनको हेमोफीलिया होता है इन केस ऑफ ए फीमेल। हमारे पास यूजुअली केसेस जो है वो मेल केस आते हैं क्योंकि वो एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम पे पड़ा होगा, तो मेल जो है वो अफेक्टेड होगा, यानी कि उसको हेमोफीलिया के रिगार्डिंग इश्यूज आएंगे। इन केस ऑफ ए फीमेल उनको इश्यूज कम आएंगे, उनको माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बट उनको मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज या कोई और इश्यूज वो बहुत कम आते हैं क्योंकि वो सिर्फ कैरियर होती है। सो देयर आर द थिंग्स अभी तक हमने देखा। ओके, दैट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ टारगेट जॉइंट। जब भी आप एक सेटअप में काम करोगे इन क्लिनिकल सेटअप, आप ये वर्ड्स बार बार सुनोगे। एक वर्ड हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, factor 9 factor 8. Now the next is a target joint. So what is a target joint? A target joint in hemophilia is a joint where the recurrent bleeding episodes occur, typically defined as a 3 or more spontaneous bleed within a 6 month of period. What happened? अगर एल्बो पे एक बार ब्लीड हो गया और विद इन 6 मंथ ऑफ ए पीरियड उसको 3 से ज्यादा बार ब्लीड हो गया, इट मींस वो जॉइंट टारगेट जॉइंट है। मतलब बार बार उसी जॉइंट को टारगेट किया जा रहा है, वहां पे ब्लीड बार बार हो रहा है। तो टारगेट जॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है। जब हमारे पास केस आता है हम जरूर पूछते हैं कि टारगेट जॉइंट कौन सा है, टारगेट जॉइंट वेदर वेट बेरिंग और नॉन वेट बेरिंग। इसी पे हमारा सारा रीहैब प्रोटोकॉल है, वो खड़ा होता है कि हमने इसका रिहैब प्रोटोकॉल क्या बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर टारगेट जॉइंट नी है, इट मीन जैसे ही हम इसको खड़ा करेंगे वेट बेरिंग में, तो देयर माइट बी चांसेस कि वहां पे ब्लीड आपका हो जाए। एल्बो पे करेंगे तो एल्बो पे हम वो नॉन वेट बेरिंग है तो हम थोड़ा ध्यान से कर सकते हैं। तो टारगेट जॉइंट को आप वर्ड को बहुत बार सुनोगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ऑरा। ऑरा, अगर आप मेडिटेशन करते हो या स्पिरिचुअल फील्ड में हो तो ऑरा मींस आपका आसपास का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है। किसी व्यक्ति के पास जाके आप बहुत अच्छे से बहुत खुशी महसूस करते हो, किसी के पास थोड़ा कम करते हो। सो इन टर्म ऑरा इन हेमोफीलिया, ऑरा मींस पेशेंट को खुद को पता लग जाता है कि मुझे ब्लीड होने वाला है। प्लीज इस टर्म को बहुत ध्यान से समझना, आगे भी हम इसमें थोड़ा सा बात करेंगे। ऑरा मींस पेशेंट को ऑलरेडी आइडिया होना शुरू हो जाता है कि टाइटनेस आ गई, थोड़ा सा स्वेलिंग, मुझे पूरा पता है कि मुझे ब्लीड होने वाला है। इवन हेमोफिलिक पेशेंट जो है या हेमोफिलिक पर्सन है, उनको ये भी आइडिया होता है कि मेरे किस जॉइंट में ब्लीड होने वाला है। तो कभी भी हेमोफीलिया पीडब्ल्यूएच आपसे बात करे कि मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ ब्लीड होगा, इट मींस वो ठीक बोल रहा है। तो आपको उसके ऑरा का जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हेमार्थ्रोसिस। हेमार्थ्रोसिस इज अ मेडिकल टर्म फॉर ए ब्लीडिंग इनटू ए जॉइंट कॉजिंग पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड वार्म अदर फॉर्म ऑफ इंजरी। अगर जॉइंट में ब्लीड हुआ है और एक्यूट ब्लीडिंग है तो दैट इज ए हेमार्थ्रोसिस। अगर बार बार हेमार्थ्रोसिस हो रही है दैट विल लीड टू द हेमार्थ्रोपैथी। अभी आगे आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखेंगे जिसमें आप देखोगे हेमार्थ्रोपैथी क्या होती है, हेमार्थ्रोसिस क्या होता है। नाउ दिस इज ए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्या होता है, आप जो ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो जब पिक है दैट इज ऑफ द नी जॉइंट, और नी सारा स्वेल हुआ पड़ा है, ठीक है। सो दैट इज द केस ऑफ ए हेमार्थ्रोसिस। अगर इसको नहीं ठीक किया गया तो दैट विल लीड टू द हेमार्थ्रोपैथी। In a prolonged bleeding, the most common sign prolonged bleeding after the minor trauma, surgery or dental procedure totally depend upon a factor ऐसे level। अगर वो माइल्ड और मॉडरेट है तो दैट माइट बी पॉसिबल कि वो बच जाए, अगर श्वेयर है तो फैक्टर इंजेक्ट करना ही पड़ता है। यानी अगर फैक्टर बॉडी में नहीं है, अगर बाहर से फैक्टर उसको दे दिया जाए तो उसका जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है वो रुक सकता है। उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि हम बोलें कि इसको रेस्ट करवा दो जी, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। वेट एंड सी, मतलब आप हेमार्थ्रोपैथी की तरफ बढ़ रहे हो। तो प्लीज आप ध्यान रखो, अगर ब्लीड हो गया है, स्वेलिंग है, पेशेंट को पता है, तो इट मींस विद इन 2 आवर्स आप फैक्टर कहीं ना कहीं से उसको फैक्टर एडमिनिस्ट्रेशन करवाओगे। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके आसपास क्लिनिक्स कौन से हैं जहाँ पे फैक्टर्स अवेलेबल हैं। इजी ब्रूजिंग, अगेन अ जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज एंड द सॉफ्ट टिश्यू हेमेटोमा। सॉफ्ट टिश्यू हेमेटोमा को अगर आप ट्रीट नहीं करते दैट विल लीड टू द सूडो ट्यूमर्स, और बाद में इसकी सर्जरी होती है, तो दैट्स क्वाइट टफ फेस। Now these are some of the picture radiographs over there. This is a elbow or hemarthropathy इसमें हुई है। This is a case of a typical case of a hemarthropathy. You have seen the femoral condyles over there और पूरा swell हुआ है, and these are the X-rays of these hemarthropathy.
नाउ दिस इज इंट्रा ऑरल ब्लीडिंग। प्लीज आप आगे भी हम पढ़ेंगे, ध्यान रखो कि जब भी बच्चा ब्रश करेगा वहां से अगर उसका ब्लीड हो रहा है बार बार और वो ब्लीड नहीं रुक रहा है, इट मीन्स हेमोफीलिया है। और उसको क्लिनिकल में सेंटर्स में या सिविल हॉस्पिटल में लेके जाके एक बार असेस करवाओ, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे जिसमें ये आइडिया होगा कि आज इसको ब्लीड है। नाउ दिस इज अ केस, बहुत बार देखा गया कि बच्चे के खेलते हुए नेल पे अगर कोई इंजरी हुई है तो उसको हेमेटोमा बना, यहाँ पे ब्रूजेस हुए और उसको हील होने में बहुत टाइम लगा। सो दिस इज अबाउट द बायलेटरल नी आर्थ्रोपैथी। यू हैव सीन द केस। ओके, दिस इज नी आर्थ्रोपैथी। इसको बार बार ब्लीड हुआ। टारगेट जॉइंट यानी कि इसको 6 महीने में 3 से ज्यादा बार ब्लीड हुआ सिर्फ नी जॉइंट में। नी जॉइंट इज अ वेट बेयरिंग जॉइंट और यहाँ पे नी बायलेटरल नी आर्थ्रोपैथी हो गई। तो अब हमने, अगर if we're talking about hemophilia, so what we have learned about the hemophilia is that it is a bleeding disorder. Basically, two factors are responsible. For a factor 8, it is hemophilia A. For the factor 9, it is hemophilia B. Then we talk about the hemarthrosis and hemarthropathy. Then we talk about a target joint. अगर bleed ज़्यादा हुआ है, 3 से ज़्यादा बार हुआ है within a 6 month of a period, then it's a target joint. The next part is an aura. जब कभी भी रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल हम बनाते हैं तब हम उसका ऑरा उसका जरूर पूछते हैं, वो पेशेंट बता देता है कि सर ये होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमोफीलिया। नाउ इट्स अ ब्रेक टाइम, थोड़ा इंटेंस था अबाउट द हेमोफीलिया। सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक, यू कैन जस्ट हैव अ सिप ऑफ अ वाटर। So this is about the hemophilia, and this is some sort of a break. Hopefully, you have some sip of a water or glass of a water over here. So in a hemophilia, again, it's about a pathophysiology. Blood अगर कट लगा, अगर skin के बाहर blood हुआ, then again it's a bruises within a skin, within a joint भी bleed हो सकता है। अगर कहीं ट्रॉमा हुआ और चलते हुए उसका घुटना या उसका एल्बो कहीं लगा तो जरूरी नहीं है स्किन को कट लगेगा और सारा ब्लड बाहर आएगा, ऐसा नहीं होता। स्किन जो है वो फ्लेक्सिबल है, ब्लड अंदर ही अंदर इकट्ठा होता जाएगा और फर्दर उसको स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द हेमोफिलिया ट्रीटमेंट। द थेरेपीज आर द फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, नॉन फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, बाईपासिंग एजेंट एंड जीन थेरेपी। जो for the physios, what is more important, the first thing is a on demand therapy, the second one is a prophylaxis. Please इस term को थोड़ा ध्यान से समझना। If you have a pen and copy, please write it down. On demand factor means जब पेशेंट को चोट लगी, whenever the injury occur, पेशेंट हॉस्पिटल गया, फैक्टर लगवाया, दैट इज ऑन डिमांड। पेशेंट ने डिमांड किया कि उसको इंजरी हुई, दैट्स ऑन डिमांड की वहां जाके उसने एडमिनिस्ट्रेशन करवाया। सेकेंड थिंग इज ए प्रोफिलैक्सिस। इंजरी हुई या नहीं हुई, विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ पेशेंट रेगुलरली हॉस्पिटल विजिट करेगा टू गेट हिज प्रोफिलैक्सिस डन। So emicizumab is a drug which is used for a prophylaxis. Now there is a controversial statement that whether we go for an on-demand or we go for the emicizumab. So please listen to me very carefully. If we're talking about the one vial or a 30 mg vial of emicizumab that cost around 1.2 lakh. So करीब करीब 1 लाख की एक ड्रग आती है 30 mg की, जो अप्रोक्सीमेट रेट है, ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर पेशेंट, टोटली डोजेज कैलकुलेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन अ वेट ऑफ अ पेशेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को एक हफ्ते में 2 बार एमिसोसिमैब लगता है, प्रोफिलैक्सिस 2 बार देना पड़ता है या हफ्ते में 1 बार। तो इन ए पंजाब, आई एम वर्किंग इन ए पंजाब, the Punjab government issues some finances, some budget to deal with this emicizumab and the hemophilic patient. तो आप देखो कि अगर एक बच्चा, जनरली बच्चों में शुरू हुआ है, तो एक बच्चे को अगर हफ्ते में 1 बार लगा तो उसको लाइफ लॉन्ग उसको प्रोफिलैक्सिस पे रखना है। अगर 1 लाख का इंजेक्शन बच्चा अभी 8 साल की उम्र में या 10 साल में लगा रहा है तो अप टू 70 ईयर्स कितना खर्चा हो गया। तो दिस इज अ फाइनेंशियल, आई डोंट यूज द वर्ड बर्डन, बट
बहुत सारे फाइनेंसेस लगते हैं इसमें, सो गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऐसे केसेस आते हैं फॉर द हेमोफीलिया, तो उनको प्रोफिलैक्सिस, बहुत कम बच्चे हैं जो मैंने देखा कि प्रोफिलैक्सिस पे हैं। जनरली लोग जो हैं, बच्चे हैं, वो ऑन डिमांड पे आते हैं। तो ये ऑन डिमांड अच्छा है, प्रोफिलैक्स अच्छा है, ये एक अलग इशू है। बट आपके पास केस आए तो आप ध्यान रखना कि जो अगर फैक्टर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब 30-40,000 का उसका इंजेक्शन का कॉस्ट होता है। तो पेशेंट आपके पास आ रहा है तो अपने बहुत ध्यान से फैक्टर ऐसे लेवल चेक करके उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, या कोशिश करें कि अगर उसको फैक्टर लग जाए उसके बाद वो रिहैबिलिटेशन के लिए आए। सो नेक्स्ट आर द इनहिबिटर्स। अब क्या हुआ, पेशेंट को फैक्टर बाहर से दिया, बट पेशेंट की बॉडी ये कह रही है कि ये जो बाहर से फैक्टर मिल रहा है ये कुछ इशू है, इट्स ए फॉरेन सब्सटेंस, और उसका इम्यून सिस्टम ऑन हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम ऑन हो गया तो वो जो बाहर से फैक्टर आ रहे हैं वो उनको खाना शुरू कर देगा। सो वो पेशेंट जो है वो इनहिबिटर पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लीज, ये टोटली आपके फिजिशियन है, पेडियाट्रिशियन है, हेमाटोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज का ध्यान रखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का ब्लीड बार बार हो रहा है तो उसका टेस्ट होता है इनहिबिटर का। अगर इनहिबिटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लीज गो फॉर द टेस्ट। अपने आप पे इन केसेस पे ज्यादा रिलाई मत करो, क्योंकि मैंने देखा पेशेंट बहुत खराब हो जाते हैं। इवन नॉर्मल फिजियो, और हम आगे देखेंगे कि नॉर्मल मस्कुलोस्केलेटल और हेमोफिलिक में क्या इशू है, यही बहुत बड़ा इशू है कि ये तो जी नॉर्मल स्वेलिंग है, ये तो स्प्रेन है, हम इसको अल्ट्रासाउंड से ठीक कर देंगे। वो जब तक फैक्टर एडमिनिस्ट्रेट नहीं होगा तब एक इशू है, अगर फैक्टर को इनहिबिटर पॉजिटिव हो गया वो फिर एक इशू है। तो वो आपके हाथ से केस, आपका रेड फ्लैग हो गया कि आपको ये केस आगे भेजना है। सो नाउ दिस इज अवर पार्ट, व्हाट अबाउट अ फिजिकल थेरेपी। सो अभी तक हमने देखा हेमोफिलिया, हेमोफिलिया ए, हेमोफिलिया बी, अबाउट सम पैथोलॉजी, about some medical treatment, about emicizumab, about prophylaxis, about on demand factor, about gene therapy. Gene therapy is a new term. तो ये सब हो गया मेडिकल। नाउ व्हाट अबाउट ए फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी जैसा हम पढ़ते हैं, इट्स ऑल अबाउट स्प्लिंटिंग, प्राइस पुलिस, इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज, एक्सरसाइजेज। We are in a Punjab setup, and we are treating the patient in a low socioeconomic status criteria. So हम बहुत ज्यादा पेशेंट पे पैसे नहीं लगा सकते। ऑलरेडी पेशेंट जो होता है वो एक लेबर क्लास का है, या वो बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तो हमें बहुत हद तक पेशेंट को ये ध्यान में रखना होता है कि पेशेंट का और ज्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पेशेंट जो है या बच्चा है वो पेरेंट्स पे बर्डन बन गया है। तो आपको जो स्प्लिंटिंग लगानी है, प्लीज बहुत ध्यान से लगानी है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स अपर लिम्ब ब्लीडिंग और लोअर लिम्ब ब्लीडिंग। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ए प्राइस एंड पुलिस। जो ये गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफिलिया गाइडलाइंस, जिसको ड्राफ्ट किया है डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने। वो सीएमसी बिल्लौर से हैं और उन्होंने सारा ड्राफ्ट किया। तो अब इसमें बात आती है कि प्राइस जो हम पहले यूज करते थे, द वन थिंग इज आर इज फॉर रेस्ट। आर इज फॉर रेस्ट को रिप्लेस कर दिया है विद ऑप्टिमल लोडिंग, दैट इज पोलिस, POLICE। यहाँ पे फिजियोथेरेपी का रोल आता है कि इफ द पेशेंट इज इन ए रेस्ट, वो प्रिवेंशन कर रहा है, प्रिकॉशन ले रहा है, रेस्ट ले रहा है, गिविंग आइस, गिविंग कंप्रेशन, गिविंग एलिवेशन, ये तो घर पे भी कर सकता है। व्हाट अबाउट द ऑप्टिमल लोडिंग? यहाँ पे पेशेंट आता है जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द MVC, दैट इज अ मसल वॉलंटरी कंट्रोल। Now, with the help of a muscle voluntary control, you can add on the things in a optimal loading. Patient को load कितना देना है, that totally depends upon a physiotherapist. वो इसको guide करेगा, ठीक है। तो there is one term which I'm using, that is MVC. जो बच्चे मेरे साथ हैं उनको idea है, but MVC, that is a muscle voluntary control. So muscle voluntary control means if the patient is having a bleed, let us suppose patient is having a bleed just few hours back or a few days back, and you are asking the patient to press the pillow, press the towel with their knee with 100% of effort, अगर पेशेंट का फैक्टर ऐसे लेवल स्वीयर है, वो दोबारा फिर ब्लीड करेगा। तो आपको प्लीज ये ध्यान रखना है कि उसका जो MVC है वो 20 या 30% पे रखो, वहां से स्टार्ट करो, धीरे धीरे प्रेस करो। बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ द केसेस जहाँ पे वो फिजियोज जो मस्कुलोस्केलेटल को देख रहे हैं, घुटने के नीचे टॉवल प्लेस किया, इसको जोर से दबाओ, अगेन द पेशेंट इज हैविंग अ जॉइंट ब्लीड। जैसे ही प्रेस किया फिर ब्लीड हो गया, जैसे ही प्रेस किया फिर ब्लीड हो गया। यस, दिस थिंग हैपेंस। सो प्लीज ऑल माय फिजियो फ्रेंड हु इज वाचिंग द वेबिनार, ऑप्टिमल लोडिंग और MVC को प्लीज ध्यान में रखें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट इलेक्ट्रोथेरेपी। सो देयर आर, जितनी भी थर्मल थेरेपीज हैं हम वो अवॉइड करते हैं, बिकॉज उससे वेसोडाइलेशन होगा, वेसोडाइलेशन होगा तो ब्लीड बहुत ज्यादा आएगा। वो जनरली प्रेफर द क्रायोथेरेपी। सो आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को अगर ब्लीड होता है और पेशेंट से जो उसका हॉस्पिटल है या फैक्टर अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा दूर है,
तो आपको पेशेंट को क्रायो बैग्स, क्रायो आइस या क्रायो स्प्रे वो दे के उसको कंप्रेशन देना है। प्लीज मैं इस चीज में थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा। पेशेंट को ब्लीड हो गया, पेशेंट का स्किन स्वेलिंग हो गया, पेशेंट को इफ इट्स इरेगुलर सरफेस, फॉर एग्जांपल इट्स अ जॉइंट ऑफ अ एल्बो और ऑफ अ नी, तो उसको पॉलीथीन में आइस क्रश करके उसको बोलो ये प्लेस कर ले। इफ इट्स अ टफ, तो आजकल तो मैंने देखा है स्पोर्ट्स वालों के पास आइस बैग्स होते हैं, उसमें आइस क्यूब डालो और फिर उसको प्लेस करो। कितना मिनट प्लेस करना है? 4 to 5 minutes आफ्टर एवरी 20 minutes। सो दीज आर द रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स कि 4 to 5 minutes के लिए किया सारा, 20 minutes का ब्रेक, फिर 4 to 5 minutes दैट वी कैन गो फॉर अ 3 to 4 hours अप टू 2 days, जब तक स्वेलिंग वो डाउन नहीं जाती तब तक वी कैन गिव। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट अ क्रेप बैंडेज। सो क्रेप बैंडेजिंग जो होती है ना, कभी हम वर्कशॉप में कभी बात करेंगे कि क्रेप बैंडेजिंग जो हम इसमें यूज करते हैं फॉर द स्वेलिंग दैट इज फ्रॉम द प्रॉक्सिमल डिस्टल टू प्रॉक्सिमल विद अ सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न में कंप्रेशन जो है नीचे थोड़ा ज्यादा, धीरे धीरे ऊपर करके लूज करते रहना है। और प्लीज ध्यान रखना, मैंने बहुत बार देखा है फिजियोस क्या करते हैं, जहां पे स्वेलिंग ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इट्स नी जॉइंट, वहां पे अच्छे से कंप्रेशन कर देते हैं। अंदर से ब्लीड हो रहा है, बाहर आपने कंप्रेस कर दिया, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा। तो पेशेंट उसको ज्यादा देर नहीं रखेगा, उसको फटाफट उतार देगा। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। Now in electrotherapy, one more thing, the ultrasound is a very good modality to enhance the healing of the patient, of the bleeding. And the next one is IFT and TENS and the cryotherapy, again, the ice therapy. Now, some of the literature has been saying that microwave diathermy is also good for these kind of patients. तो आप जो भी इसको यूज करें प्लीज थोड़ा ध्यान से करें। अगर आप मसल स्टिमुलेटर भी यूज करते हैं, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, इफ यू आर यूजिंग अ मसल स्टिमुलेटर प्लीज डू टेक केयर ऑफ द मसल स्टिमुलेशन। बहुत बार देखा गया कि अगर ट्विच मूवमेंट हुआ, पेशेंट फिर ब्लीड कर गया, स्किन फिर ब्लीड कर गया, तो आपको स्टिमुलेशन देते हुए बहुत ध्यान रखना है। और प्लीज देन गो फॉर अ फैक्टर ऐसे लेवल चार्ट, वहां पे आपको आइडिया होगा। नाउ अगेन विद द आइसोमेट्रिक्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू विद द एमवीसी, प्लीज डू टेक केयर ऑफ एमवीसी। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टोटली डिपेंड अपॉन अ पेशेंट। अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन पे जाना है अगर पेशेंट को फैक्टर नहीं लगा। अगर पेशेंट को फैक्टर लग गया है, आफ्टर दैट यू कैन मूव फर्दर फॉर द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, देन गो फॉर अ थेराबैंड। नाउ फॉर द ब्रीदिंग एक्सरसाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन पेशेंट बोलता है कि सर वो सांस तो आ ही रहा है, क्या दिक्कत है? बट आप देखो, इफ देयर इज अ ब्लीड, पेशेंट की एक्टिविटी कम हो गई है, पेशेंट द एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट हैज बीन रिड्यूस्ड। अगर पेशेंट की एक्टिविटी रिड्यूस हो गई तो लंग की एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। लंग्स को जरूरत ही नहीं है इनहेल और एक्सहेल का इतना बड़ा प्रोसीजर करने की। तो बेटर ये है कि जब पेशेंट को हम रिहैब में लेके जाएंगे, प्लीज उसका ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसका कंटिन्यू रखें। इसका सबसे अच्छा मेथड है, व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ प्रोटोकॉल फॉर द पेशेंट, आप उसका जहां रेस्ट होगा वहां पे 5 ब्रेथ्स दे सकते हैं आप, यानी कि 5 times ब्रीद इन, डीप इनहेल एंड आउट, मतलब लेट इट बी फॉर द 5 times, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑल्सो। एंड देन नेक्स्ट वन इज अ फंक्शनल ट्रेनिंग, थोड़ा सा आगे इसके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे फिजियोज हैं जिनको ये थोड़ा सा, हु नीड फिजियोथेरेपी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हेमोफीलिया ए एंड बी, वेदर इट्स अ ब्लीडर और अ नॉन ब्लीडर। पहले इस चीज को समझो, व्हाट आर ब्लीडर्स, व्हाट आर नॉन ब्लीडर्स। ब्लीडर मींस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ हेमोफीलिया और वो ब्लीड भी कर रहा है, ठीक है, इधर स्किन ब्रूसेस, इधर हैमरेज, इधर कट्स, ब्लीड कर रहा था। नॉन ब्लीडर मतलब जिनका फैक्टर ऐसे लेवल अच्छा है और वो ब्लीड नहीं कर रहा, बट ही इज अ हेमोफिलिक। So there are two types of the patient coming to you in your OPD also. The one is a bleeder, the another one is a non-bleeder. So all the person diagnosed with the hemophilia, they need a physiotherapy. Non-bleeder means he is having a mild or a moderate type of factor ऐसे level, तो he can improve his strengthen कि वो ब्लीड हो ना, आप उस लेवल पे ना जाओ कि उसको कहीं ना कहीं से ब्लीड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नॉन ब्लीडर भी है बट उसको ट्रॉमा हुआ तो ब्लीड तो फिर भी करेगा। तो आपको इन केसेस में फिजियोथेरेपी रेगुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जो है वो रेगुलर बनाना पड़ेगा। व्हेन टू स्टार्ट, कब शुरू करना चाहिए? द मोमेंट यू गेट डायग्नोस्ड। जैसे ही आइडिया हुआ कि हेमोफीलिया है, अब हेमोफीलिया है, डायग्नोस कैसे होता है? देयर आर 2-3 थिंग्स। फॉर एग्जांपल, इट्स अ किड, बच्चे में हो जाता है। 2-3 तरीकों से बच्चों में डायग्नोस हो जाता है। अगर उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए आप थोड़ा डिले कर रहे हो, द वन थिंग, व्हेन ही स्टार्ट ब्रशिंग हिज टीथ, तो जब वो दांतों पे ब्रश करेगा, अगर ब्लीड हो गया और वो ब्लीड नहीं रुक रहा, इट मींस कि उसको हेमोफीलिया है। प्लीज उसको मूव करो फर्दर, जो भी लैब टेस्ट है उनके लिए। सेकंड वन इज, जब वो अपना माइलस्टोन अचीव करेगा, व्हेनेवर ही इज मूविंग टुवर्ड्स द क्वाड्रिपॉड पोजीशन, वो नी की और हाथ से चलेगा तो उसको नी में ब्लीड हो जाएगा। या जब वो चलना शुरू करेगा, वो बार बार गिरेगा, अगेन उसको ब्लीड होगा। तो इट मींस कि आपको आइडिया हो कि इसको पता कैसे लगे कि ये हेमोफीलिया है।
what kind of exercise should I do? It's always a tailored program. अभी तक आपने देखा होगा, if the person is coming to with the ACL injury, with the OA knee, and with some Baker's cyst or popliteal fossa pain, we all are recommending the same kind of exercise. But इस केस में नहीं होगा ऐसा. So you should be very much aware of the tailored exercise program. Patient को issue क्या है, कहाँ problem है, और हमने क्या देना है और कितना MVC देना है. ये धीरे धीरे जब आप patients देखना शुरू करोगे आपको आइडिया हो जाएगा. So the next one is, does exercise cause bleed? Yes, some of the patient come to us saying कि exercise करूंगा तो और bleed होगा. तो there are lot of studies also which are saying exercise reduces the frequency of bleeding. Frequency of bleeding मतलब हमारे पास केसेस आते हैं, आज ब्लीड हुआ, 3 दिन बाद फिर ब्लीड हो गया, 5 दिन बाद फिर ब्लीड हो गया, फिर 6वें दिन फिर ब्लीड हो गया. बट अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं तो जो ब्लीडिंग की फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. देयर इज वन केस इन आवर ओपीडी. हमारे जो फैक्टर्स हैं वो टोटली डिपेंड अपॉन है पंजाब गवर्नमेंट. तो एक बार ऐसा हुआ कि अवेलेबिलिटी नहीं थी फैक्टर की. इन दैट केस हमने फॉर द 3 months रेगुलर फिजियोथेरेपी बच्चे की और उसको ब्लीड नहीं होने दिया. आफ्टर दैट ही गॉट एन फैक्टर, उसके बाद वो ठीक रहा. तो आप देखो फिजियोथेरेपी मतलब वी आर स्टार्टिंग अवर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी विद द डीना गार्डन बीपीटी फर्स्ट ईयर, एंड वी आर गिविंग द पेशेंट, एंड वी आर just saving the amount of a Punjab government or any government with the 1.2 lakh rupee per week. तो विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, व्हाट आर योर चार्जेस ऑफ फिजियोथेरेपी, हम आगे थोड़ा सा देखेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज जो फ्रीक्वेंसी थी ब्लीडिंग की वो बहुत कम हो जाती है, पेशेंट को नहीं होने देते. इफ पर्सन विद हेमोफीलिया ब्लीड, शुड ही स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज? अगर उसको ब्लीड हो गया, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू एक्सरसाइज अ मसल और जॉइंट इफ देयर इज एक्टिव ब्लीडिंग. प्लीज, एक्टिव ब्लीडिंग मतलब पेशेंट को अभी ब्लीड हुआ है, और उस केस में मतलब इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज. बट आप ध्यान रखें कि द फर्स्ट थिंग इज दैट जिस जॉइंट को ब्लीड हुआ है आप उस जॉइंट को रेस्ट पे रखें. आप बाकी जॉइंट की मोबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि जब पेशेंट खड़ा हो, सेम एज अ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, तो वो उसको इम्प्रूव कर सके. फिजिकल थेरेपी किसी भी स्टेज में शुरू की जा सकती है. ऐसा नहीं है कि इसको हेमार्थ्रोसिस हो गया, आर्थ्रोपैथी वाले केस फर्दर फिर रिप्लेसमेंट के लिए चले जाते हैं. बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, किसी भी स्टेज में आप फिजियोथेरेपी शुरू कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक इन केस ऑफ अ सीपी, बच्चा पहले नहीं आया तो स्टिफनेस बढ़ गई, कोई और एनर्जी होगी. हेमोफीलिया में आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. सो पेशेंट फील्स ओके, शुड ही स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज? पेशेंट को लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज बंद कर दूं? नो, ही शुड कंटिन्यू हिज एक्सरसाइज रिजीम. सो देयर इज वन पेशेंट आई वांट टू, ओके. So patient is wearing some sort of a elbow band over there. The patient target joint of the patient is a elbow joint. पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट पार्ट वाले में था, फैक्टर अवेलेबिलिटी सही थी, फिजियोथेरेपी रेगुलर चल रही है, उसके बाद भी हेमोफिलिया पेशेंट, फॉर एग्जांपल सम ऑफ द फिजियोज आर सिटिंग ओवर देयर एंड वाचिंग दिस वीडियो एंड दे फाउंड दैट दिस वीडियो इज अ नॉर्मल थिंग. बट फॉर द हेमोफिलिक पेशेंट, जब ये वहाँ कहीं मैं कॉन्फ्रेंस में दिखाता हूँ तो दे अप्रिशिएट कि यार ये हेमोफिलिया का पेशेंट और ये ऐसे करके एक्सरसाइज कर रहा है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. If PWH feels an aura during exercise session, but he was told to continue exercise, should he continue? बहुत बार देखा गया है. Even like a gym trainer, some of the physio says, थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और कर लो, एक बार और कर लो. बट वेन एवर द पेशेंट को जो आइडिया हो जाए कि ऑरा आ रहा है यार, ये ब्लीड होगा, तो प्लीज नो नीड टू डू 1 rep मोर, आपको वहीं ऑफ कर देना. पेशेंट ने बोल दिया, यहाँ पे पेशेंट की बात मानो. बिकॉज इन सम ऑफ द केसेस लाइक TKR, थोड़ा सा और मोड़ लेते हैं, थोड़ी सी और फ्लेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा. जब PWH ने बोल दिया कि मुझे डाउट लग रहा है कि सर वो होगी, स्वेलिंग होगी, सो इट्स सॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस कि उनको आइडिया हो गया, अब और ब्लीड और रेपिटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद उसको फिर दोबारा ब्लीड हो जाएगा. तो दिस इज अ वीडियो ऑफ ए केस, ये हमारे पास बहुत पहले आया था और एक ट्राई साइकिल पे आया था विद स्फीयर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी. आफ्टर दैट बहुत देर फिजियोथेरेपी करवाने के बाद ही स्टैंडिंग में आया एंड ही वाज वेरी. वीडियो से So this patient came at the age of I think 5 or 6 years.
और अभी ये मतलब आई थिंक अभी 11-12 का तो ये हो गया होगा, तो ये रेगुलर फिजियोथेरेपी कर रहा है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अभी रेगुलर मूव कर रहा है और आगे काम कर रहा है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी? अगेन दिस इज़ अ विशियस सर्कल। ब्लीड होगा, ब्लीड में फिर पेन होगा, पेन में आप रेस्ट में जाओगे, रेस्ट में होगा तो फिर जॉइंट स्टिफनेस, आफ्टर दैट जॉइंट स्टिफनेस, मस्कुलर वीकनेस, देन डिक्रीज फंक्शनल एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो फिर ब्लीड हो जाएगा। तो इस साइकिल को, इस सर्कल को तोड़ने के लिए फिजियोथेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, what are the major bleeding sites? So this is very important. Shoulder bleed, elbow, iliopsoas, knee and ankle. These are the major musculoskeletal joints जहां bleed होता है। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये केसेस बहुत आएंगे और इसमें एल्बो के, नी के, ये केसेस आपके पास बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। शोल्डर के थोड़े कम होते हैं। इलियोसॉस में अगर कोई इंजरी हो तो एंकल ट्विस्ट करे तो दिक्कत आती है, नहीं तो एल्बो और जो नी के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा आपके पास देखने को मिलेंगे। Okay, this is some sort of academic part, assessment of a PWH, fish and HHS, which we are using in our college, regular use करते हैं, and the physios are deputed to assess these kind of a cases. तो इसके लिए particularly clinical trainings होती हैं, which I did in Bengaluru, ठीक है, 2-3 years back. तो we are doing, and our PGs are doing the research thesis on this hemophilic cases. So what is one simple mantra? The one thing is if it's a upper limb bleed, then you have to go for a splintage. If it's a lower limb bleed, just go for a bed rest. So this is a simple formula. This is given by a South Africa Federation of Hemophilia. Differentiate between physiotherapy of musculoskeletal disorder and a bleeding disorder. So this is important. किसने लिखना है तो please ये लिख ले. So this is an important thing. First of all, whenever the musculoskeletal injury patient comes to you, you just check the end feel. ब्लीडिंग डिसऑर्डर में अगर आपने एंड फील चेक किया और उसका फैक्टर ऐसे लेवल शेयर हुआ तो वो दोबारा फिर ब्लीड कर जाएगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट को प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका फोटो खींच लो या इसको लिख लो कि बहुत बार हमने देखा कि हमारे पास केसेस आते हैं कि फिजियोथेरेपी तो करा रहे हैं या फिजियोथेरेपी तो करवा रहे हैं बट उसके बाद भी पेन हमारा कम नहीं हो रहा, बिकॉज दिस इज द रीजन, क्योंकि जो हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं हम बीपीटी फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्न तक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन ज्यादा देखते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम देखते हैं। तो अगर आपने एंड फील चेक किया पेशेंट को दोबारा फिर ब्लीड होगा पक्का। आप एमएमटी चेक कर रहे हो, एमएमटी तो ये है कि अगर अवेलेबल रेंज में नहीं है तो हम एमएमटी नहीं चेक करते। तो अगर मसल ब्लीड हो गया तो हम एमएमटी फिर भी नहीं चेक करेंगे इन केस ऑफ ए पीडब्ल्यूएच। अगेन विद द गोनियोमेट्री, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में देयर इन लॉट ऑफ ए कंडीशन वी हैव टू गिव अ हॉट पैक। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कभी भी हॉट पैक नहीं देना, प्लीज इस चीज को फिर ध्यान से कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कभी भी हॉट पैक नहीं देना। ऑलवेज गो फॉर अ कोल्ड पैक और द क्रायो पैक्स। हमारे पास यहाँ पेशेंट आते हैं बहुत दूर दूर से, तो दे कम विद आइस बैग, वो उनका एक आइस क्यूब का बैग होता है, उसमें अपना सारे कोल्ड पैक्स डाल के लेके आते हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं। इन केस अगर उनको लगता है तो वो कोल्ड पैक यूज करते हैं, नहीं तो वापस चले जाते हैं। आप ध्यान रखना अगर स्वेलिंग है आप कंप्रेशन के साथ अगर आप हॉट पैक दे रहे हो तो गड़बड़ है। अगेन मस्कुलोस्केलेटल में वी गोइंग फॉर अ हिस्ट्री। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हिस्ट्री के साथ फैक्टर ऐसे लेवल जरूर पूछना है। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में देयर इज सम स्पेसिफिक जॉइंट, इन अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर देयर इज अ टारगेट जॉइंट। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में फिजियोथेरेपी बहुत हद तक काम करती है। हम बहुत बार कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बट इन अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर फैक्टर अलोंग विद फिजियोथेरेपी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट विद फिजियोथेरेपी अकेला तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फैक्टर मिसिंग है उसमें, वो फैक्टर फिजियोथेरेपी से कैसे आएगा। तो फैक्टर के लिए वी हैव टू गो फॉर अ फिजिशियन और द क्लिनिक्स और द सिविल हॉस्पिटल्स और द मेडिकल कॉलेजेस, वो उसके लिए फैक्टर के पास, एंड फॉर द फिजियोथेरेपी वो हम हैं। इन मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन वो नॉर्मल पे चला जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में प्रोफिलैक्सिस में जाना पड़ता है क्योंकि वो फैक्टर मिसिंग है। Then this is about the some of the question. Again, it's a break time. So this is one of the podcasts which I have given recently. That's a good. Please go for. So this is an episode. This is a podcast given by me, and this is all about the physiotherapy and the geriatric patient. Please go for this. ओके, हेमोफीलिया है, मैंने आपको थोड़ा सा अमाउंट बता दिया कि इतना इतना खर्चा होता है, ये होता है। तो जस्ट टॉक विद द एवरेज फाइनेंशियल लॉसेस फॉर द हेमोफिलिक पेशेंट एंड देयर केयर गिवर।
सीपी के केस में और हेमोफिलिया के केसेस में मैंने ये देखा कि केयर गिवर भी उतना ही सफर करते हैं। सो दिस इज अ स्टडी डन बाय आवर कॉलेज, दैट इज द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, कि एक एवरेज कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का पेशेंट को पड़ता है वो कितना पड़ता है, एवरेज लॉस वेजेस का पेशेंट का और केयर गिवर का ऑलमोस्ट 8,000 के बराबर है। तो ये सिर्फ जो एक आदमी रोज लेबर पे जा रहा है, ये सिर्फ उसका कैलकुलेट किया होगा कि हमारे पास पेशेंट आते हैं दैट्स फ्रॉम द लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। एवरेज लॉस ऑफ वर्किंग डे, हेमोफिलिक पेशेंट ब्लीड हो गया, वो अकेला नहीं आ सकता, उसके साथ उसका एक केयर गिवर आएगा। जब केयर गिवर आएगा तो वो अपने काम पे नहीं जाएगा, अपने काम पे नहीं जाएगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो वो उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो अब हमने ये देखा कि टोटल 17% एब्सेंटीज होते हैं इसमें केसेस में। एवरेज स्कूल एब्सेंटिज्म, मतलब 3 मंथ्स की स्टडी है, तो इफ इट्स 90 डेज तो 23 डेज एब्सेंट रहते हैं एवरेज। अगर 23 दिन यानी अप्रोक्सीमेटली 1 महीना बच्चा स्कूल नहीं गया तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्लीड, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। एवरेज 8% ऑफ हेमोफिलिक चिल्ड्रन लेफ्ट देयर स्कूल ड्यू टू ब्लीडिंग इश्यूज। बहुत बार देखा गया बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अभी भी रिसेंटली भी आई हैव अ केस इन माय ओपीडी, 2 महीने से स्कूल नहीं गया, ब्लीड हो रहा है जी, कैसे बैठना कैसे जाना है। तो इन केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ के प्रिंसिपल से बात कर सकता है। वो जो भी हमने रिहैबिलिटेशन में पढ़ा है ना वो सब यहाँ काम आता है। बच्चे की क्लास जो है वो स्टेयर्स चढ़ के है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया, क्लास डाउन शिफ्ट हो गई। रेलिंग नहीं है, रेलिंग बनवा दी। रैंप नहीं है तो बच्चे के लिए अगर उसने व्हील चेयर पे जाना तो रैंप बनेगा। एक अटेंडेंट साथ उसको एक कोई भी क्लास 4 एम्प्लॉय है या हेल्पर है वो उसको अंदर लेके जाएगा, बाहर लेके जाएगा। दीज काइंड ऑफ द प्रोटोकॉल जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो मैं बाकी फिजियो से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो इस चीज को देखे और आगे फर्दर गाइड करें। कोई इशू नहीं है वहाँ के प्रिंसिपल की बात करने के। हम तो यहाँ लेटर भी इशू कर देते हैं कि प्लीज इसको देखो। और देयर इज हेमोफिलिया सोसाइटी ऑफ पंजाब, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संदीप हैं, वो एडवोकेट हैं और वो बहुत हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। सो इट इज अबाउट द एवरेज एक्सपेंडिचर जो हमने देखा। सो बट वी हैव फाउंड दैट केयर गिवर का जो एक्सपेंडिचर लॉस है वो 8,000, अगेन पेशेंट का 8,000। बट अगर इफ इज कमिंग फॉर अ रेगुलर फिजियोथेरेपी इन आवर कॉलेज तो उसका 1 महीने का जो खर्चा है वो 360 रुपीज है। सो ये 360 पेशेंट का नुकसान भी बचा, 360 ये लगा, और प्लस जो प्रोफिलैक्सिस वगैरह हुआ वो सारा गवर्नमेंट दे रही है। तो विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी हम सारा कुछ इसको बचा सकते हैं, यानी कि वो इतना हम फाइनेंशियली बैलेंस कर सकते हैं। हु नीड फिजियोथेरेपी? द वन इज अ ब्लीडर्स, नॉन ब्लीडर। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, दोनों को ही चाहिए। अगेन यस, इट्स अबाउट द अवेयरनेस ऑफ, क्योंकि मुझे अभी भी सर से मेरी बात हो रही तो मुझे लगा कि बहुत बच्चे जो बहुत फिजियोज हैं वो पहली बार सुन रहे हैं कि हेमोफिलिया भी एक डिसऑर्डर होता है। अगर फिजियोज अब सुन रहे हैं तो सोचो जो गांव में पेशेंट बैठा है, वी आर वर्किंग इन अ रूरल एरिया, पाकिस्तान इज जस्ट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और वहां तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये हेमोफिलिया होता है, इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, स्वेलिंग हो जाएगी, आर्थ्रोपैथी हो जाएगी, बच्चा चल नहीं पाएगा, जस्ट लाइक ए सीपी। तो अगर इसकी अवेयरनेस होगी और इसके ट्रीटमेंट की अवेयरनेस होगी तो हमें आइडिया होगा कि बच्चा हम बचा सकते हैं। फैक्टर, अगेन मैंने आपको बोला फैक्टर बार बार सुनोगे, फैक्टर की अवेलेबिलिटी कहाँ है? सिविल हॉस्पिटल में फैक्टर की अवेलेबिलिटी है, मेडिकल कॉलेजेस में है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट सेंटर, फॉर एग्जांपल वो वर्किंग इन गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव केयर सेंटर है फॉर द हेमोफिलिया एंड थैलेसीमिया, और वहाँ पे फैक्टर अवेलेबल होते हैं। अगेन प्रोफिलैक्सिस 2 तरह से मिलता है। तो वन इज अ गवर्नमेंट इशू करता है क्योंकि बजट बहुत ज्यादा है, बट मैंने देखा है बहुत बार इंडिविजुअल भी अपने लेवल पे एमसुजिमैब ले लेता है या वो प्रोफिलैक्सिस की तरफ चला जाता है। अलार्म, टारगेट जॉइंट, मसल एट्रोफी, फिजियोथेरेपी एडजंक्ट ऑन नेसेसिटी। बहुत बार देखा कि फिजियोथेरेपी क्या जरूरत है, जैसे मैंने पहले बोला कि इज इट ओके इफ आई फील ओके तो फिजियोथेरेपी करवानी है, बिल्कुल करवानी है, इट्स नॉट एन एडजंक्ट, इट्स अ नेसेसिटी। एंड वी आर मेकिंग अ प्रोटोकॉल जस्ट आफ्टर 1 मंथ और 1 ईयर, वी आर मेकिंग अ प्रोटोकॉल। उसके बाद वो धीरे धीरे बात करता रहता है, हम उसको मूव ऑन करते रहते हैं। और अगर सही जगह पे पेशेंट आया तो एवरीवन इज हैप्पी, हम भी खुश हैं, पेशेंट भी खुश हैं, अटेंडेंट भी, केयर गिवर, सब खुश हैं। So what are the few points to be considered? The one is if the factor is not available, no problem. I have just given you an example of my patient. तो 3 महीने तक भी अगर फैक्टर नहीं मिला तो हम उसको मैनेज कर दे रहे। हमें आइडिया था कि ये टारगेट जॉइंट है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका यहाँ ध्यान रखना है, बाकी एक्सरसाइज में एमवीसी इतनी रखनी है। सो इसी तरीके से हम टेलर्ड प्रोग्राम बनाते हैं। नो पेन नो गेन, जस्ट ये ना बहुत बार जिम में लिखा होता है दर्द नहीं हो रहा तो गेन नहीं होगा। हेमोफिलिया में बिल्कुल उल्टा है, अगर पेन हो रहा है तो रुक जाओ प्लीज, उसको ऑरा आ गया है, उसको पता लग गया है, अब इसके आगे नहीं जाना। अगेन ऑरा, थिंक अबाउट अदर जॉइंट्स, इफ द पेशेंट इज ऑन अ बेड रेस्ट तो बाकी जॉइंट्स ठीक है, आप उन पे काम कर सकते हो आप। So tailor-made program depend upon a various factors.
जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे आपका हाथ बैठता जाएगा इस पे। सो वो क्या फैक्टर है, फॉर एग्जांपल इफ अ किड इज कमिंग टू यू, इफ अ चिल्ड्रन और स्कूल गोइंग किड इज कमिंग टू यू, उसका प्रोटोकॉल रिहैब का अलग बनेगा। जो एक लेबर है उसका अलग बनेगा, अगर कोई दुकान पे बैठा है उसका अलग बनेगा, अगर कोई रोज ऑफिस वर्क कर रहा है उसका अलग बनेगा। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन एज, छोटा बच्चा है या बड़ा है, टारगेट जॉइंट क्या है, हमने इसको कर लिया। वेट ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नी जॉइंट टारगेट जॉइंट और वेट पेशेंट का ज्यादा है तो अगेन उसको फिर ब्लीड होगा, तो उसके वेट का बहुत ध्यान रखना है। उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज करता है, वो मोटरसाइकिल यूज करता है, एक्टिवा यूज करता है, वो बसेस में आता जाता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका प्रोटोकॉल बनाने के लिए। द इम्पोर्टेंट इज फैक्टर एससी लेवल ऑल्सो। असिस्टिव डिवाइसेस क्या क्या चाहिए उसको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अबाउट अ गेम्स, नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं खेलने हैं उसने, और पेशेंट का गोल क्या है, उसका एम क्या है उसका। So if it's a tough time, no issue. Yes, we have seen the patient even in a COVID time also, by the video calls or making a videos to the patient. Patient वहां पे कहीं दूर बैठा है, अभी भी फोन भरा पड़ा है, पेशेंट की वीडियोस हैं कि ये इशू है, ये इशू है, मैंने ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है, ये गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉल्स एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप पेशेंट बड़े आराम से हमारे साथ मैनेज हो रहा है। तो दिस इज अ चैलेंज एक्सेप्टेड। बस जस्ट लास्ट 50 मिनट्स आफ्टर 4 months ऑफ द रेगुलर फिजियोथेरेपी, जैसे पेशेंट जो बहुत समय से सिर्फ बेड पे था, वो नहीं चल पा रहा था, उसने विद रेगुलर फिजियोथेरेपी जॉब भी रिज्यूम किया और वो कार वार भी चलाने लग पड़ा। तो फर्स्ट टाइम वो हमारी ओपीडी में खड़ा हुआ था। तो पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन हिज नी, तो हमने एल्बो को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि एल्बो लिफ्ट हो गया, एल्बो से वो बाकी बॉडी प्रेशर ले रहा है। अगर उसका श्वास ब्लीड कर रहा है तो हमने एल्बो को इतना स्ट्रॉन्ग किया, हमने बाइसेप ट्राइसेप को इतना किया ताकि वेट शिफ्ट हो जाए। सो दिस पेशेंट ही इज ऑन अ व्हील चेयर, यहाँ पे वो फंक्शन अटेंड कर रहा है, ही सिटिंग इन अ कार और वो कार ड्राइव कर रहा है बढ़िया से एकदम। अगेन चैलेंजेस फॉर द केयर गिवर, जो ये आप एक्सरे देख रहे हो स्कोलियोटिक एक्सरे, ये उसकी मदर का है, वो बहुत समय से उसको कैरी कर रहे हैं, धीरे धीरे ये उनके बैक एक्सरे, यानी कि अलॉन्ग विद द पेशेंट, अलॉन्ग विद द पर्सन पीडब्ल्यूएच, हमें केयर गिवर का भी ध्यान रखना है। ये बड़ा टफ केस था इट्स। सो चेंज इन करिकुलम, यस इट्स पहले आया था एग्जिस्टिंग में, यहाँ पे मेंशन ही नहीं था, सो प्रपोज किया गया कि हेमोफिलिया और थैलेसीमिया को इसमें डाला जाए। फिर जस्टिफिकेशन है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट ब्लड डिसऑर्डर्स दैट आर मिसिंग इन ओल्ड सिलेबस एंड हैव बीन इंक्लूडेड। उसके बाद करिकुलम में चेंज हो गया, अभी एनसीएचपी का मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो बस लास्ट 10 मिनट्स, ओके, यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके, नाउ द फिजियोथेरेपी गाइड फॉर द चिल्ड्रन विद हेमोफिलिया। बच्चों में थोड़ा अलग इशू है, तो बच्चों को बड़े ध्यान से टैकल करना पड़ता है। अगेन आई टोल्ड यू द फर्स्ट सिम्टम्स, ब्रश करेगा बच्चा, माइलस्टोन अचीव करेगा, चलेगा, तब उसको दिक्कत आएगी। कभी भी बच्चों को इशू आता है, प्लीज उसके टॉयज और इन सब चीजों का ध्यान रखें। शार्प एजेस या हैवी वेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लीज उनको ना उठाने दें, और आपको सिर्फ ध्यान रखना है वो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे इशू आ जाता है। प्लान योर डे अहेड, कोई भी एक्टिविटी करवानी है बच्चे के लिए, हम यहाँ पे प्लान करते हैं कि कल इसको क्या करवाना है, परसों क्या करवाना है। इवन वी प्लान अ गेम फॉर द किड्स, उसके मदर को टीच करते हैं कि हमने कल ये गेम करवानी है या परसों ये करवानी है, घर पे आप ये गेम खिला सकते हैं, आप इसको प्लान करके चलें। According to the age, yes, manipulative activities, constructing activities, functional training is very important. I'm big fan of functional training. The important thing is that we are going for the isolate exercises. That's also good. But compound exercises वो बहुत अच्छी हैं। Functional training means बच्चा कहीं पे भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन को ऐसे पर्टिकुलर यूज नहीं करता, वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ एल्बो और नी तब यूज करता है जब उसको कोई काम करना होता है। और हम इन आवर कॉलेज वी आर गिविंग अ फंक्शनल ट्रेनिंग टू द पेशेंट कि ये काम करना है, इसको कैसे मैनेज करना है। नो डाउट ये शुरू आइसोमेट्रिक से, आइसोलेट से, फिर वो कंपाउंड पे, फिर वो फंक्शनल ट्रेनिंग पे जाता है। तो प्लीज कभी भी आपका पेशेंट आए तो उसको फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ जरूर लेके जाएं।
Change it up, sports, low impact, avoid, and swimming is the best exercise. Swimming जो है वो बहुत अच्छी है. Then he can go for a badminton, tennis, chess, swimming. Totally depend upon a factor ऐसे level. नाउ स्पीकर, हाँ प्लीज, अगर आपको कहीं पे भी इशू लग रहा है, किसी के घर देखा, कहीं देखा, तो उसको बोलो कि सिविल हॉस्पिटल में जाए या मेडिकल कॉलेज में जाए, वहां जाके प्लीज टेस्ट जरूर करवा ले. नी एल्बो प्रोटेक्टर शुड बी देयर. ध्यान रखना, अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ, बच्चा साइकिल से गिर गया, ब्लीड बहुत ज्यादा, बहुत बुरा हाल हुआ उसका. So write it down, time and the reason of bleed. I have seen the one case, वो पेशेंट आया विद severe हेमोफीलिया, किसी और फिजियो ने हैंडल किया. वो जब उसको सिर्फ एल्बो में ब्लीड था, पर जब वो यहाँ से गया उसको एल्बो, नी, इलियोसॉस तीनों ब्लीड था. हमारे पास यहाँ फैक्टर नहीं थे. पेशेंट यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ गया. 6 घंटे का सफर है, बड़ी मुश्किल से निकाला. तो प्लीज जो भी फिजियो सुन रहे हैं, नोट इट डाउन. फैक्टर बहुत जरूरी है, एमवीसी बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से पेशेंट को देखना है. Please follow the exercise regime prescribed by the physiotherapist who is trained in a bleeding disorder. धीरे 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 पेशेंट्स आने शुरू होते हैं, आपको आइडिया होना शुरू होता है. नहीं तो हम फिर कभी भी प्लान कर सकते हैं, particularly for the physiotherapy exercises for the patient. Now it's all about a teamwork. Hematologist there, pediatrician, physician, orthopedician, nurse, physio. So Dr. Neetu Kukad is there, Dr. Varun Kaul is a nodal officer, Dr. Himanshu, Dr. Anshul is there, physiotherapist मैं हूँ, and the most important is the patient. यहीं से सारा वर्कआउट शुरू होता है. इनमें से कोई भी मिसिंग है, फिर ये टीम वर्क नहीं है. So this is a book written by 3 of us. So this is a book written by 3 of us. Me, Dr. Varun Kaul is a nodal officer, Dr. Smathi Sambhya. So book is in a 2 language. Basically ये book पंजाबी में लिखी गई थी, पहले इंग्लिश में लिखी गई थी, फिर पंजाबी में. कि ये पेशेंट एजुकेशन बुक है. ये मतलब ऐसा एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है या मेडिकल बुक नहीं है. पेशेंट को सिर्फ ये समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किन चीज़ों का ध्यान रखना, किन चीज़ों का नहीं रखना. और ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है. तो सर इट्स अ लास्ट पार्ट. इट्स इंटरेस्टिंग पार्ट. जो कुछ पढ़ाया वो इनको समझ में आया भी कि नहीं आया. सो वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ क्विज. तो PWH represent person with hemophilia, patient with hemophilia, problem with hemophilic and play with hemophilic. तो जो भी इसका राइट आंसर है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें. 5 4 3 2 1. पर्सन विद हेमोफीलिया. प्लीज एज पर WHO हम पेशेंट नहीं बोलते, हम पर्सन ही बोलेंगे. पर्सन विद हेमोफीलिया. During active bleed, what should be considered to reduce swelling? Cryotherapy, hydrotherapy, aromatherapy, or music therapy? That's a very important. 5 4 3 2 1. Go in a comment box. It's a cryotherapy. Who needs physiotherapy? Bleeders, non-bleeders, only non-bleeders, none of the above. Then again, go in the chat box. 4 3 2 1. It's the bleeders and non-bleeders. Joint having 3 or a more bleed within a 6 month is target joint, synovial joint, adhesive joint, or a saddle joint. 4 3 2 1. So it's a target joint. Who can have hemophilia? Both men and women, only women, none of the above. 4 3 2 1. Again in a chat box. Yes, both can have a hemophilia. Aura is an indication of bleed, sleep, hunger, anger. So in a PWH, the aura is for again it's a bleed. Factor as a level for a mild PWH. 5 to 40%, less than 1%, 1 to 5%, none of the above.
So it's a mild PWH और फैक्टर ऐसे लेवल सभी फिजियोस को याद रखने हैं. So it's a 5 to 40%. So next is an important question. This is the toughest. How you rate this webinar? It's a 100 out of 100. B option is A, C option is A, and D is A. आप टाइम ले लो, कोई बात नहीं, आराम से. Thank you. So we are working. We are done with our quiz also. जितना पढ़ा है, that's an introductory and some sort of a casual lecture. So we are working in a Punjab, and we are here in a Faridkot with the GGS Medical College and Hospital, and these are the areas which we are covering for the patient with hemophilia or the person with hemophilia, starting from the Pathankot up to the Mansa Bathinda, and Ludhiana also. So this is integrated center for the thalassemia and hemophilia care in a GGS. This is our ward. So this is a patient education program. ये usually conduct होते रहते हैं, हम patients को बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना. And this is a hemophilia summit in 2022. Hemophilia is a bleeding disorder, not a musculoskeletal injury. Treat the bleed first. Protect the joint always. Please आप जो quotes हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें. So it's again a hemophilia celebration, World Hemophilia Day. Yes, we are working on a thalassemia also. My PGs are working on a thalassemia also. So Thalassemia Day celebration. This is Hemophilia Conclave 2023. Musculoskeletal injuries heal with the movement. Hemophilia demands a caution before movement because अभी recently मैंने देखा कि movement is medicine. Yes, it's a movement with medicine is good. It's about the musculoskeletal injuries. Hemophilia में please थोड़ा ध्यान रखें, फिर movement करवाएं. Movement करवाया तो bleed हो जाएगा. It's a Government Medical College Srinagar. Lecture over there. Government Medical College Amritsar. Okay, Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute for the Person with Disabilities. Behind every bleed is a battle you don't see. It's quite tough. एक lecture. Okay, so this is a photo. यहाँ policy बनाई गई थी for the hemophilic patient. Physiotherapist यहाँ से मैं गया था तो it happened in Chandigarh. So this is the AHEAD Asia Pacific conference in Bengaluru where I presented a case over there. This is the Indian Association of Hemophilic Disorder. I'm standing in a green tie. This one. Pet hemophilia, a bleed, not like a sprain. Misjudgment can damage a lifetime. Okay, this is Dubai. Recently, I went there. 4 of my paper got selected for the international summit. And he's Dr. Alok Shrivastava, who's responsible for the guidelines of the World Federation for Hemophilia. And these are my colleagues from the Abu Dhabi. So strength isn't a muscle, it's in managing hemophilia every single day. So this is, I'm done with my presentation. It's 4:27. So you can go ahead and hopefully जिनको हेमोफीलिया के बारे में नहीं पता था, जो बोलते हुए भी थोड़ा सा स्टैमर कर रहे थे, उनको हेमोफीलिया, टारगेट जॉइंट, फैक्टर एसे लेवल, क्रायोथेरेपी, स्प्लिंटेज, प्राइस, पुलिस, थोड़ा सा वो अबाउट द होप बुक, अबाउट सम ऑफ द रेडियोलॉजिकल केसेस, जो भी रेडियोग्राफ्स यहाँ दिखाए गए हैं वो सब असली हमारे खुद के हैं, मतलब जो ओपीडी में आ रहे हैं वो वाले हैं, ये कहीं गूगल से नहीं उठाए वो, अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्राओरल. उसके अलावा जितने आप रेडियोग्राफ्स देख रहे हो ये केसेस हम रेगुलर इंटरवल पे डील करते हैं इन आर ओपीडी. सो सर, डॉक्टर परवीन, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन सच अ नाइस जेस्चर, एंड थैंकफुल टू डॉक्टर दर्शन ऑल्सो. ओवर टू यू सर. Thank you so much, sir. We never thought of hemophilia this way, the way you showed us today. And we'll definitely see our patients in according of what you said today. I hope the webinar was informative for everybody present in this. And I would like to ask everyone that if there are any questions, they can write in the chat box, please. Any questions for sir? Okay. I guess sir, webinar काफी informative था, सबको सब पता चल गया है. ठीक है सर, not an issue. Yes. The day also. And they can see the webinar again also. It is available on YouTube also now. Yes. We have a question, sir. We have a question. Just a second. Yes, ma'am. You can proceed with the question, ma'am. Jiten Mittal, sir. Yes, please, sir. You can ask the question.
in the chat box, sir. Hello. Jiten, sir, you can ask your question in the chat box, please. He is not responding. Not an issue, sir. वो वैसे भी अगर ग्रुप में भी कर लेंगे तो I can answer. I will surely answer. Okay. Okay, sir. You can ask your questions in the group as well. Anyone has written also not able to understand, sir. Can you explain? Excuse me, sir. Yes, I have please. a question. Please. Okay, no problem. Sorry for the interruption. Not Sir, an issue, sir. actually, patient came with a hemophilia. He's from Rajpura. Actually, last year हमने इनकी की थी physiotherapy. तो he's quite better now. पर yesterday इसने चौंकड़ी मारी और इसका घुटना वहाँ पे अटक गया है. अटक गया. हाँ जी. अब ये हीमोलिब्रा डोज ले रहा है. तो ठीक तो है ये, इसके कोई स्वेलिंग नहीं है, बट वहाँ पे वो जैसे कह लो अटक गया गोडा. हाँ सर ठीक है, जस्ट गेट अ नोट फ्रॉम योर ऑर्थोपेडिशियन और अ फिजिशियन. कोई इंजरी ना हुई. और हाँ जी, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया था यहाँ पे, इन्होंने पटियाला कराने आते हैं फिजियोथेरेपी. ठीक है. तो ऑर्थोपेडिशियन कहता कोई सच मेजर इशू नहीं है, आप फिजियोथेरेपी लो. जस्ट मेरा ये क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई ट्रैक्शन हेयर? Sir, instead of using a traction, you can go for a dynamic splint also. I'm a big fan of dynamic splint. Yes. अभी recently भी मैंने अपने एक बच्चे को दिया है. Dynamic splint से धीरे-धीरे करके रेंज बढ़ जाती है. उसका फैक्टर लेवल क्या है, आप शेयर कर सकते हो? क्या फैक्टर ऐसे लेवल, बस यही चीज मैं आपको बता रहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट जो भी है ना, वो प्लीज फैक्टर ऐसे लेवल का ध्यान रखें. हेमलिब्रा लग रहा है, इट मींस ही इज नियर टू नॉर्मल. बट अगर ये सॉर्ट ऑफ घुटना अटक गया है तो जस्ट गो फॉर स्टैटिक स्प्रिंट आल्सो और पैटेलर मोबिलाइजेशन अलोंग विद एमवीसी जो भी मैंने समझाया है अभी. ओके सर. थैंक यू सर. ओके सर. ओके. Someone is written over here, sir, can you please provide the study material for the hemophilia and PT management accordingly? Yes, sure. कर सकते हैं पक्का. आप प्लीज ग्रुप में ये डालना, so, जो भी मेरे पास मटेरियल होगा I will surely share. Okay, done with the presentation, sir. Yes. Hello. Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. We are hoping for more sessions from you and Sure. give us more knowledge about hemophilia and thalassemia. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.